किसी को क्या नाम है, कोई सब्जी अच्छा लगता है, किसी को Right. दूसरा सब्जी अच्छा लगता है। तो वैसे ही सारे जितने भी विषय होते हैं, सुखों के भी और दुखों के भी, सबको अलग अलग तरह से अनुभव होते हैं। एक ही विषय किसी को कम अच्छा लग सकता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लग Right. सकता है, उसी विषय से किसी को बहुत बुरा भी लग सकता है। तो हाँ, और दूसरा बात उन्होंने बोले है कि लोगों को सेटिस्फाई करना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों का चाहिदा का कोई अंत नहीं है। Our demand is limitless. जैसे We want this thing, that thing, and everything. लिमिटनेस, मतलब मरा हुआ आदमी भी इच्छा करता रहता है क्या? मतलब जब तक जीवित है तभी तक करेगा ना। जब तक आप जिंदे हैं तभी तक तो डिजायर करेंगे, उसके बाद कैसे करेंगे? Right. तो लिमिटलेस कैसे होगी? और एक दिन में 24 आवर होता है, इसमें से 8 घंटा तो आप सोएंगे। एक विश होगी सोने की 8 घंटा, कुछ काम करेंगे 2-4-5 घंटा, करने की विश होगी 2-4-5, तो ये 2 विश कितने देर की हो गई? 8 घंटा और 5 घंटा, 13 घंटा, मतलब आधा दिन खत्म 2 विश में। ये तो डेली का हो गया। इसके अलावा नहाएंगे, धोएंगे, खाना वाना खाएंगे, इसमें कितना विष लगता है? 2-4-6 को ऐसे मिला लो, तो इतना विष कहाँ है? मुश्किल से 100 विष पर पहुंचेंगे तो उतने में जीवन घूमने लगता है। जैसे सब्जी आप कितने तरह का खाएंगे? 10-20 तरह का, वही घुमा घुमा के खाते रहते हैं। जैसे आज जो सब्जी खाया 20 दिन बाद फिर मैं उसको खाना चाहूँगा, या 5 दिन बाद खाना चाहूँगा, तो रिपीट होता रहता है। तो ऐसा कौन सा विष है जिसको के पूरा नहीं किया जा सकता? मतलब अच्छे जीवन के लिए मैं उस विष की बात नहीं कर रहा। कोई बोले कि भाई चांद को इधर लेके आओ, या चांद को मेरी हथेली में दो। चांद इतना बड़ा है कि इधर कोई ले भी आएगा तो हथेली में नहीं आएगा। माने अच्छा जीवन जीने के लिए जो विशेष होती हैं उसमें से कौन सी विश ऐसी है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, या आज भी 10% लोगों की वो विश पूरी नहीं हो रही है? 10% पीपल दे आर doing fulfill their all wishes which is possible in this world. They doing that? I think so that they are not also satisfied. No. Those who are happy 10%, Satisfy they why? are not also satisfied. They are also demanding like more and more and more. No, like a satisfaction means how you looking, like overall satisfaction or satisfaction part by part. They also have some problem which they have not solution. So they will not feel satisfaction in those things. But if you have good food, so at least you are satisfied in the region of food. If you have good bed, good home, so so part by part, satisfaction is not like it will come by one thing only, or by, it's part by part. Like if you have this good, so and now good looking, so you are satisfied by this. Maybe unsatisfied by something else which is not fitting to you, or which is not usable for you. Maybe some problem, some that way. So topic is not that like we will make 100% satisfaction anyone. Topic is this: can we make people maximum satisfaction? How much possible in this world? Yes, sir. You tell me what is the way. So like if we calculate, hardly more than 1,000 or 2,000 type of products and services available in this world now. Okay, and all of the people, they're doing this from this list. Someone is something, someone is something, or some variations. So by the system we can provide this all 1,000 or 2,000 product and services according to the people demands. How much they demand, where they demand, and when they demand, like this way. And we produce according to that and we fulfill that. When they demand, fulfill them. What problem in this means? Why cannot possible this? So what type of problem can come in this? मतलब इसमें क्या समस्या आ सकती है? He said, as he spoke, he was telling
the person, those are different fields. So their desire is to achieve the highest the elevation to their own field. They said, Okay. I want to become this thing, I want an award, I want to be elevated. If I join this thing, position-wise, this thing, what is central. He said those पोजीशन वाइज मींस कैसे? नहीं अभी सब जैसे कभी है आई वांट टू हैव मोर अवार्ड्स इन दैट वे अभी हम भी चाहते हैं अभी है बैठ से एवरीवन दैट दोस थिंग्स टेलिंग अबाउट दैट पीपल शुड एवरीबॉडी वांट्स टू एलिवेट जब आप कविता के फील्ड में काम करते हैं, अगर ये आपका इंटरेस्ट का है, अगर कोई मजबूरी नहीं है, बहुत सारे लोग तो पैसे के लिए करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट का ये फील्ड है तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्या कविता करने से, सुनने से, कविता का जो भी फील्ड है आपको अच्छा नहीं लगता? I think so that we have not achieved the goal व्हाट गोल? to reach ultimate, to earn ultimate result. No. Life is not for ultimate result. Life is for the running result. Like when you are doing kavita, you enjoying that or not? If you enjoying, so goal you achieving continuously. Goal is not such like okay, after when I will reach there, only that time I will achieve. Not during the course also you are achieving. I think sir is talking about today's scenario. Like suppose now we are discussing. So our our satisfaction start from the when our discussion is Start the conversation. Yes. It's not like when conversation will finish and then satisfaction will come or not come. Not, it's every second is coming. Because this process itself for a satisfaction. If it is going according to me, according to you, if it is going not according to me, according to you, it will create unsatisfactory or like suffering. Continuously, it's not like after some time. When it will happen such type of, it will continuously create happiness or it will create continuously suffering or it will be boring if have no concern, have no interest in one of this. So it is like such things, na? What type of goal you are talking, like a spiritual people talking about that, and actually that type of goal nowhere exists. Like ultimate is nothing. When we start to eat food, a satisfaction start if it is according to us. It's not like when we will eat আমি তো একটা full জিনিস food, then বললাম, satisfaction start. একটা জিনিস বললাম Then satisfaction will complete. যে মানে our demand is differs from this man to that man. Yes. আমি হয়তো মাছ খেতে ভালোবাসি, উনি হয়তো মাংস খেতে ভালোবাসেন, আপনি হয়তো নিরামিষ খেয়েছেন, ভেজিটেবল খাচ্ছেন। তো এটা হতেই পারে, মানুষের চাহিদা ভিন্ন রকমের, ভিন্ন রুচি, এটা হতেই পারে। একটা চাষি বা একজন দিনমজুর, তার যে চাহিদা টু আর্ন সাম মানি, টু টেক সাম মিল, তার পৃথিবীতে আর কিছু না, তার খিদেটা আছে। আমাদের পেটের খিদেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। তো সাধারণভাবে ইফ ইউ ডি মিট আওয়ার মিল, তখন আমার মনে হয়, দেখুন ধরুন আর একটু বাংলা করে বলি, ওই ভালো করে বলি। আপনি বাংলায় বলুন, বাংলায় বলুন। ধরুন আমি আজকে 5 টাকা রোজগার করেছি, ঠিক আছে? 5 টাকা দিয়ে আমার 3টে বাচ্চা আছে, বউ আছে, আমরা 5 জন। আমার আজকের দিনের রোজগার হচ্ছে 5 টাকা। অনেক চেষ্টা করে কান্না ঘাম রক্ত ঝরিয়েও আমি 5 টাকার বেশি রোজগার করতে পারিনি। কিন্তু সবাইকে খেতে দিতে হবে, কী কিনবো? আমি বড় জোর 5 টাকার মুড়ি কিনবো, মুড়ি কিনে এক মুঠো মুঠো করে খেলাম, কারো কিন্তু খিদেও হলো না, মানে পেটও ভরলো না। প্রত্যেকে কিন্তু ক্ষুধার্ত, তারা চাইছে বাবা ভালো কিছু নিয়ে আসুক, অন্তত 2টো ভাত, সাদা ভাত, নুন দিয়ে হোক, মাছ দিয়ে হোক, আমরা খাই। 5 টাকাটা যদি আমার কালকে 15 টাকা হয়, আজকে মুড়ি না কিনে আমি হয়তো কালকে চিড়ে কিনবো। 15 টাকা যদি 25 টাকা হয়, আমি হয়তো রুটি কিনবো। এমনি করে আমাদের ডিমান্ডটা বাড়ে। তেমনি যারা ক্ষুধার্ত, তাদের খুন নিবৃত্তির জন্যে তারাও কিন্তু ওই আর্নিংয়ের উপরে ডিপেন্ড করে ওইটা করে। আমি যদি আজকে 1000 টাকা যদি পার ডেতে আমার রোজগার হয়, আমি স্যাটিসফাইড যে আমি ভাত খাচ্ছি, মাছ খাচ্ছি, ডাল খাচ্ছি, তেল খাচ্ছি। এবারে
এমনি করে টাকা যত বাড়বে আমি চাইলেই তো হবে না। আমি যদি আমি যাকে ঘোড়ায় করে অফিসে যাব, রোজ বাসে যাই, আজকে একটা ঘোড়ায় চড়ে যাবো, তাহলে ঘোড়ায় চলবার মতো আমার একটা সামর্থ্য আর্ন করতে হবে। ইফ আই গট নো সাচ ওয়ে, আমি কী করবো? আমার কিছু করার থাকে না। কিন্তু ওই চাহিদাটা কিন্তু আমার আছে। আমি ভিড় বাসের মধ্যে যেতে চাই না, আমি চাই একটা গাড়িতে যেতে, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। तो ऐसा जो गोल रखा गया है स्पिरिचुअल में कि भाई अल्टीमेटली, तो जैसे बोलते हैं कि भाई अमीर आदमी भी नंगा जाएगा और उसको जला देंगे मरने के बाद, और गरीब आदमी भी नंगा जाएगा और उसको जला देंगे। बोले एक ही बात होगी। अरे एक बात कैसे होगी? कि आप मरने के बाद की बात देख रहे हो, जीवन की बात नहीं देख रहे। व्यवस्था तो जीवन के लिए चाहिए, मरने के बाद थोड़ी चाहिए किसी को व्यवस्था। सेटिस्फैक्शन तब चाहिए जब हम जीवित हैं। हाँ, मरने के बाद कौन सेटिस्फैक्शन मांगता है? कौन कहता है कि मेरे को 1 किलो रसगुल्ला दो? कौन? वो तो अलग विषय है, वो तो रिलीजियन का विषय है। हाँ, वो बोलता है कि धर्म मरने के बाद भी सब एक में पहुंच गया। हाँ, तो लेकिन उसकी बात यहाँ, हाँ तो उसकी बात तो यहाँ नहीं कर सकते ना। यहाँ जो हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए वो तो एवरी टाइम चाहिए। Every time। ऐसा थोड़ी चाहिए कि बस सुबह चाहिए शाम को नहीं चाहिए, या शाम को चाहिए लेकिन रात को नहीं चाहिए। ऐसा करके होता है क्या? एवरी टाइम होता है ना। जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो तभी से सेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और तब हमारा खाना पूरा होता है। तो अगर खाना हमारे हिसाब से है तो हम कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो जाता है। आज टुडे आई एम टोटली लाइक सेटिस्फाइड बाय फूड। ওই সুবিমল বলেছেন কিন্তু আনন্দ, यस, সুখী সুখী হওয়া হয়তো হয় না, আনন্দটা দরকার। हाँ। প্রতি সময় যে আমরা আনন্দ পাচ্ছি এটা তো ব্যাপার। तो हमें थोड़ा अपना चीजें देखने का फोन तो हमें थोड़ा अपने चीजों को देखने का ना थोड़ा नजरिया जो पीछे से हमें कई बार अनप्रैक्टिकल मिला है। हाँ, आपको मिला था, आप बोलेंगे तो इसमें आपकी आवाज अच्छी है। আমি আর কি বলবো, আমরা বলা যা বলছেন না, আমরাও কিছু জানবো, সেটা স্পষ্টভাবে আমাদের পক্ষে। यस, तो इसमें जो है हमें चीजों को थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा जैसे कि वो हैं ऑलरेडी में। पीछे से बहुत सारी चीजें ना ऐसी आई हैं कि वो वैसी हैं नहीं, और उनको हमें वैसा पढ़ाया गया या हमने वैसा पढ़ा है। जैसे अबाउट सेटिस्फेक्शन, अबाउट विश है कि भाई इच्छाएं अनंत होती हैं। नहीं भाई, इच्छाएं जब तक हम जीवित हैं तब तक ही होती हैं, हम मर गए तो इच्छा भी खत्म। और हम भी साइकिल में इच्छा करते हैं, मतलब आज जो किया 5 दिन बाद फिर उसी का कर लेंगे, 10 दिन बाद फिर उसी का कर लेंगे, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो हर एक, और ये डिसाइड होता है बॉडी के कंपोजिशन से। मेरा बॉडी का कंपोजिशन जैसा है, मुझे वैसी चीजें ही अच्छी लगेंगी। जो इसके साथ मैच नहीं करती वो मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। अगर मैं उनको खाने की कोशिश भी करूंगा तो मुझे खराब लगेंगी। तो ये खाने वाले को पता चल जाता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, और ये अच्छा नहीं लगता है। तो जो उसको अच्छा लगेगा उसी की वो डिमांड करेगा, वही उसकी विश होती है कि भाई जो मैं विश करूं वो मुझे मिले, और जो मैं ना करूं वो मुझे ना मिले जबरदस्ती। ऐसा एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है बस, कि ऐसे एक ऐसा। अभी भी हम पूंजीवाद में जो लोग कर पाते हैं, मतलब जिनके पास पैसा है ज्यादा, तो वो जितना कर पाते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं ना, जितना पॉसिबल है आज के सिस्टम में ट्राई करते हैं ना वो। अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता तो वो क्यों ट्राई करते? वो तो बैठ जाते ना अगले दिन के, बोलो छोड़ो भाई क्या करना है। तो इसका वो कर देता हूँ। तो चूंकि जैसे आपको भी जिन जिन चीजों में सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको आप करते रहते हैं ना लगातार। अगर उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ऐसा होता कि नहीं भाई अल्टीमेटली तो सेटिस्फेक्शन होता नहीं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि फिर आप कोई भी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं प्रयास करोगे, ये होगा ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं प्रैक्टिकल में। आप तो करते हो प्रयास, हर रोज करते हो, हर क्षण करते हो, जब भी आपको लगे आप करते हो। जो कर सकते हो वो आप करने का ट्राई करते हो। तो अगर आप ऐसे डिसीजन पर पहुंच गए होते कि भाई अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो देन आदमी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास कैसे करता? तो ये कंट्राडिक्शन रहता है। जो आदमी ऐसा बोलता है वो चाहे वो कुछ और सोच के बोलता है, मगर ये प्रैक्टिकली कंट्राडिक्शन है।
नहीं, आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं ठीक है ना? बोलिए। हाँ, क्योंकि हमें हर क्षण सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम बाद में भी सोचते हैं कि अच्छा सब कुछ ठीक रहा, हाँ ठीक रहा तो ओके, और दुख जाएगा। हाँ वो फिर देखता है कि अच्छा ये बढ़िया हो गया। अगर उसमें कहीं कुछ अनसेटिस्फेक्शन रहा तो उसे अगली बार वो करेक्ट करने की कोशिश करता है कि अगली बार जब हो तो इससे बेहतर हो। जैसे अभी आप बता रहे थे कि मैं जो समझा, मुझे बांग्ला उतनी नहीं आती, तो सर ने मीटिंग की और उसमें कुछ कमियां रही माने अनसेटिस्फेक्शन रहा। तो अगर ऐसा ऐसे होता जैसे आप बता रहे हैं तो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है, यही ना? तो अगली बार वो क्या करेंगे कि इसको ऐसा करने की कोशिश करेंगे जैसा Refine करेंगे उसको। है ना, प्योरीफाई उसको, राइट हाँ, तो तब ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अभी भी मतलब सेटिस्फेक्शन तो हुआ है मगर कम हुआ है ना अभी भी, और आगे कुछ तो हुआ। हाँ कुछ तो हुआ, जरूर हुआ। हाँ, और आगे प्रयास हो तो चलता रहेगा। यस, और आगे सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है, ऐसी आशा है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा, और ये ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जहां हम कहें कि हाँ अब ठीक है, अब पर्याप्त है, अब इससे ज्यादा भी होगा तो बोनस होगा, मतलब हमें जितना चाहिए उतना तो अब हो गया है ना? तो ये इस तरह से रहता है। तो ये जो हम पीछे से सोचते आए हैं, सुनते आए हैं कि भाई कभी आदमी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है, दिस इज आई थिंक रॉन्ग एजम्पशन। और ये एजम्पशन है तब का जब बहुत गरीबी थी और दुख ज्यादा थे आदमी के जीवन में, सुखों की स्थिति कम थी क्योंकि तब साइंस भी नहीं थी और रोटी कपड़ा भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, और प्राकृतिक दुख भी बहुत थे, है ना? जंगल में के आसपास रहते होंगे तो बहुत सारे, तो उस समय शायद आदमी ऐसा सोचता होगा कि यार बड़ी खराब नेचर है, यहाँ कुछ ऐसा साथ खास संभव नहीं है। और आज की दुनिया में तो हम देखते हैं कि बहुत बेटर। हाँ बहुत बेटर पोजीशन है अब तो। अगर हम मैनेज कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुख बाकी बचेगा। जस्ट इस टाइम खाली मैनेजमेंट करने की बात है कि हम इसको कर लेते हैं। जैसे कितनी सारी चीज़ों में तो कर लिया है ना, जैसे आपका चश्मा अभी टूट जाए तो आप अभी ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो वो दे जाएगा आपको, ऐसा आप अपना नंबर बता देंगे कितना है, अगले दिन आपको मिल जाएगा। या हम एक और एक्स्ट्रा बना के रखते हैं कि भाई एक टूट जाएगा तो दूसरा यूज करेंगे तब तक। कई सारी चीज़ों में तो हमने मैनेज कर लिया है, आज की खराब व्यवस्था में भी ये सब आपका मैनेजमेंट ही तो है। कम से कम इतना तो आपके पास है ना, इसमें से कुछ भी विश होगा, कुछ भी इच्छा होगी आपकी, आप तुरंत कर लेंगे। इतना तो कर लिया ना आपने आज की इस व्यवस्था में भी। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कि जिसमें आपको जितना भी पॉसिबल है वो सब हो जाए, और ये इधर भी ना रहे। ये देखो इसने कितना जगह ले रखा है यहाँ, आपका घर है तो इतना जगह, ये ऐसा हो जाए कि जब आपको चाहिए तब आ जाए और फिर चला जाए, और ये और भी अच्छा, वन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और भी अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही रहता है। जैसे आजकल जो है, पहले प्राइवेट कार लोग खरीदते थे, अभी आजकल क्या हो गया, ओला उबर हो गया। बोले बस मोबाइल में डालो और साफ कार ड्राइवर के साथ, आपको उसके इंश्योरेंस का झंझट नहीं, उसके मेंटेनेंस का झंझट नहीं, उसको रोज सुबह सुबह साफ करना है वो झंझट नहीं, ड्राइवर कहाँ से आएगा वो झंझट है ना, कुछ नहीं, बस खाली पेमेंट देने का और जहाँ बोल दो जाने का, मतलब और अच्छा हो गया। प्राइवेट कार। यस ये एक लेवल ज्यादा है प्राइवेट कार रखने से। प्राइवेट कार में सिरदर्दी बहुत है ना, इंश्योरेंस नहीं है, फिर वो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर ये नहीं है, कार में आपको खुद ड्राइव भी करना हाँ खुद ड्राइव भी करना होता है, और अगर ड्राइवर रखेंगे तो और महंगा पड़ेगा। साथ में मिल जा रहा है, मेंटेनेंस भी नहीं है, हाँ टेंशन नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, और जो प्रॉपर्टी है उसका परफेक्ट यूज होता यूज होता 24 है। आवर्स। यस अभी आपका अपन देखें तो बहुत सारे ऐसी चीजें, आपका गाड़ी तो खड़ा रहता है। हाँ यस अभी ये देखो वीरू दादा ने गाड़ी ली, हाँ कितने दिन से दिल्ली में पड़ी भाई ऐसी खड़ी है। बोलना में 5 वीरू जून, दादा क्या लेके पूरा आते 5 हैं? जून। ला तो सकते थे लेकिन बहुत दूर पड़ता है। लेकिन बेटा है बहुत सारे तेल में पहुंचेगा तो यस बैटरी यस हो जाएगा। भाई आप ऐसा सोचिए कि जितने भी अमीर लोग हैं वो दिन में गाड़ी को 1-2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और सबके पास कई गाड़ियां हैं, 2-2, 4-4, 6-6 गाड़ी है। जरूरत नहीं है। हमारे इधर सर यस आप सोचिए वो 15 साल खड़ी खत्म हो जाती है। से बताते हैं हमको ड्राइवर साहब আমার কি আছে पांच जगह बैठे रहते थे, তারা কিছু নেই। यस सुबह ऐसे ऑन करके अपना खाना खाते सोते रहते थे। यस शाम से 4 से 5:30 बजे।
तो मेन चीज ये तो जस्ट আপনি নিয়ে নেন ধরেন এটাতে রাখেন, এটাতে আমি এটা চাল দিচ্ছি, এটাতে রাখেন, আমি চাল দিচ্ছি। तो अभी क्या है कि हमें बस मैनेजमेंट बदलना है, क्योंकि आज भी मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, मगर इससे बढ़िया मैनेजमेंट हो सकता है, ये मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव हो रहा है। यस यस। আর কার আপনি একটা চান, কেন আমি কেন নেবো? আপনি জানেন না? 5টা তো চা কত দিয়েছে? আপনার একটা, আমরা একটা। ওই উনি নেন, वो नहीं খান लेते, না? वो नहीं पीते। না না, সবার আছে। ওই তো উনি নেন নিতে হবে। এই আর চাল লাগবে না আর? नहीं नहीं, हो गया तो बस ये तो ও, एक উনি आपका খান না, हो আমি गया। জানি না। না আমি এখান থেকে একটুখানি নিয়ে গেছি, আমি খাই না চা। আর একটু নিয়ে- আমরা ওরকম নিচ্ছি না, না আমরা লাগবে না, আপনি চা খান না? খুব একটা আমিও একটুখানি খাবো, খুব একটা ইস্যু নেই। হ্যাঁ আর লাগবে না। তোমার কোনটা? বুঝিও না। बाकी सारी चीजें तो एज इट इज है। कोई अगर ऐसा कहते हैं कि जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा बोल के क्या सेटिस्फेक्शन के पीछे नहीं जाता है वो आदमी? कोई भी, बुद्धा हो या अरविंदो हो या कोई भी हो, तो जीवन रुक जाएगा ना अगर ये जड़ बन जाएगा ना जीवन, वो फिर ये पत्थर हो जाएगा, বিস্কুট দিয়ে দিন, আমার লাগবে না। তো বিস্কুট লাগবে না, ওরা নেবেন না? मृत हो जाएगा, मर जाएगा। নেবে না ওরা। আমি নিয়েছি, আমার আছে। এখানে রাখেন, বিস্কুট এখানে রাখেন, চাটা আপনি নিয়ে নেন। लाइक एक एक मरी हुई चीज में और एक जीवित चीज में किस हाँ, बात का अंतर है? चाटा नहीं मुझे नहीं। अंतर बताओ आप। হাতে ট্রেটা দিয়ে দিন। इच्छा का ही है, डिजायर का ही है। हाँ, जैसे अभी मुकुंद जी इच्छा करनी बंद कर दें अगले 25 दिन के लिए, बिल्कुल कोई जरा भी कुछ भी नहीं, और सांस भी नहीं चलेगी, और कुछ भी, क्या हो? आपको कैसे पता चलेगा आदमी जिंदा है कि नहीं? मेरे कुर्सी में क्या फर्क है? हाँ, कुर्सी में और इनमें क्या फर्क है? कुर्सी भी ऐसे रखी है और 20 दिन तक रखी रहेगी, ये भी रखे रहेंगे वैसे। तो इसको इसलिए करके ऐसा सेट किया है प्रोग्राम को, जब वो कभी इच्छा करता है और जैसे उसका सेटिस्फेक्शन भी रखा है, हाँ, क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन ना रखना तब तो आदमी खाता ही खाते जाता जाए, है। हाँ, हाँ। If there is no satisfaction, if I am hungry, then I start to eat food. And if there is no any point where satisfaction, then I eating and eating and eating. Not possible. वही जी। So basically it's सेटिस्फैक्शन का बात तो हुआ कुछ, हुआ हाँ। मुद्राविहीन अर्थनीति का। हाँ, अब वो है तरीका कि जिस तरीके से अभी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मुद्रा वाला या जो पूंजीवाद है, एक तरीका है कि हमें, क्योंकि पूंजीवाद में भी यही कर रहे हैं ना कि भाई आपके पास पैसा आएगा, आपका कुछ काम करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, इससे आप कुछ इच्छाएं करेंगे और मार्केट में वो है अवेलेबल, तो आप खरीद लेंगे और सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे। यही है ना इसमें भी। तो अब इस तरीके से सबका हो नहीं पा रहा है, ये हमारे पास इतिहास है पूरा कि इस तरीके से सबके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। 10% के लिए मैक्सिमम संभव हो रहा है और 90% के लिए मिनिमम संभव हो रहा है। 10% को भी मतलब 100% नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको भी बहुत सारी समस्याएं इसमें पैदा हो रही हैं जिसे उन्हें उससे निपटना पड़ रहा है। उनको सिक्योरिटी करनी पड़ रही है उसके लिए, है ना। हम ही में से एक आदमी को उठा के वो अपने दरवाजे के बाहर रख देते हैं कि भाई कोई चोर ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। सेविंग्स करना हाँ, पहले तुम मरो, हमारे तक नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आपको मारेगा तब अंदर आएगा कोई। तो अपने ही जैसे आदमी से पहले आप ही हमारी सुरक्षा करो। हम आपको थोड़ा सा पैसा दे देंगे जिससे आप अपनी इच्छाएं करेंगे और अपना थोड़ा एक लो लेवल सेटिस्फेक्शन जीवन आप जी लेंगे ना। एक ये मैनेजमेंट है, ठीक। एक दूसरा मैनेजमेंट है जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि उसमें पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है उसकी वजह मैंने बताई है। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि अगर पैसा हम रखेंगे तो फिर मांग करने के लिए पहले पैसा चाहिए। इस अर्थशास्त्र में क्या गड़बड़ी है, इसको आप सोचिए। मांग पहले होती है कि काम पहले होता है? आप खुद बताइए। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले मांग करता है कि काम करने जाता है? first demand or work. हाँ, ओके। तो आप हिंदी समझते तो है ना? समझता है। हाँ हैं, बोलने नहीं
आप हिंदी समझता तो है ना? थोड़ा सी अच्छा, तो इंग्लिश? इंग्लिश भी थोड़ा सी हाँ, ओके ओके, ये पीछे चला गया आपको, कोई नहीं, यहाँ लगा लो। और खुले जाए। हाँ, ओ सॉरी, ये आपको, अच्छा इसमें लगा देता हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से कलर में जी। ओके, तो मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करता हूँ। हाँ, मतलब कभी जो वर्ड्स है ना जो रेगुलर में जैसे डिमांड है, जॉब है, ये थोड़ा इंग्लिश में यूज কিছু নার্ভাস বলে আমরা Yes. বলবো আমি যখন तो फर्स्ट पीपल डू डिमांड और गो फॉर वर्क, विच थिंग इज फर्स्ट? पहले कौन सा होगा? आई बेग पार्डन। मतलब जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा जन्म लिया, तो वो पहले डिमांड करेगा कि काम करने जाएगा? मतलब अर्न करने जाएगा कि पहले डिमांड करेगा? डिमांड करेगा। हाँ, तो पहले डिमांड होनी चाहिए। आज का जो इकोनॉमिक्स है वो आप डिमांड ही तब कर सकते हैं जब आपके पास पैसा हो, और पैसा कहां से आएगा? जब आप अर्निंग करके लाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको पहले काम के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद डिमांड करने के लिए योग्यता प्राप्त होगा। या फर्स्ट यू विल गो फॉर अर्निंग, यू विल डू सम वर्क, then you will get money, and then you will demand. You know, logically it's a wrong thing. Logically, what should be first? Should be demand, because other side also what happening? Market knowing first demand, then thinking for production, and then doing production, then need employment. Not here. Employment where need? When they going for production. Okay. So, and then you will get money if you will work there. If you will have work, then you will get money. Otherwise, you will not get money. So, how you will demand here if you have not work? And work you will get if only demand is there. So, दिस कॉन्फ्लिक्ट आर यू लुकिंग, मीन्स ये विरोधाभास आप देख रहे हैं आज तक के अर्थशास्त्र का। इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट, क्या बोलेंगे बांग्ला में? দ্বন্দ্ব আছে। বলুন বলুন। এটা হচ্ছে যে বর্তমান যে অর্থশাস্ত্র আছে সেখানে আমরা কোনো বস্তু যদি আমরা কিনতে চাই তাহলে প্রথমে আমার কাছে অর্থ থাকার দরকার, নাহলে আমি তো ডিমান্ড করতে পারছি না, আমি চাহিদা আমার ইচ্ছে পূরণ করতে পারবো না, অর্ডার করতে পারবো না। তাহলে প্রথম ডিমান্ড দরকার, অর্থ দরকার প্রথমে ডিমান্ড করার জন্য। তো এইবার অর্থটা কোথা থেকে আসবে? আমি যখন জীবিকা পাবো, কোনো একটা কাজ করবো, এখন কাজ আমার কাছে নেই, কারণ কি? ডিমান্ড নেই। যদি মার্কেটে ডিমান্ড থাকতো তাহলে কাজের চাহিদা বাড়তো, প্রোডাকশন বাড়তো, যারা প্রোডাকশন করবে সেই লোকের দরকার পড়তো, কর্মীর দরকার পড়তো। কারণ যেহেতু ডিমান্ড মার্কেটে খুব কম, মানে সামান্য কিছু মানুষের কাছে অর্থ আছে, সামান্য কিছু ডিমান্ড হচ্ছে, সামান্য কিছু মানুষ ক্লিয়ার হলো না ব্যাপারটা? জব রয়েছে, ক্লিয়ার হলো না। আবার বলে দিচ্ছি, এখন যে অর্থশাস্ত্র আছে, যে বর্তমান অর্থশাস্ত্র, সেখানে মুদ্রা ছাড়া আমরা ডিমান্ড করতে পারছি না। আমার কাছে মুদ্রা নেই, আমি ডিমান্ড করতে পারছি না, পরিষ্কার? এইবার মুদ্রা কোথেকে আসবে? ডিমান্ড বলতে কি ডিমান্ড? আমার যে মানে নেসেসিটি, নেসেসিটি আমার। Yes, everything like this. ওকে। পরিষেবার যে আমার যা আমাদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন পূরণ ডিমান্ড। এবার মুদ্রা কোথেকে আসবে? মুদ্রা প্রোডাকশন থেকে, যদি আমাদের কাজের লোক নেয় তখন সেখান থেকে আসবে। এবার কি হচ্ছে যে আমাদের কাছে কাজ নেই কেন? কারণ মার্কেটে তো ডিমান্ড নেই। কারণ কি? 90% লোকের কাছে মুদ্রা নেই। এখন মুদ্রা নেই কেন? কারণ মার্কেটে ডিমান্ড নেই, ডিমান্ড করতে পারছে না মুদ্রা ছাড়া। তাহলে এই যে একটা কুচক্র রয়েছে, যেখানে লোকের কাছে ডিমান্ড আসছে না বলে কিন্তু লোকে অর্ডার করতে পারছে না তার পছন্দের চাহিদা, ফলে বাজারে সর্বদাই কিন্তু মানে অভাব থেকে যাচ্ছে, 90% লোকের অভাব থেকে যাচ্ছে। এই মুদ্রার অর্থশাস্ত্র শুরু অবধি এটা চলমান থাকলে এরকমই তাহলে চলবে, মানে এই ব্যবস্থা। তাহলে এটা কোনো করুন, যতই আমরা কবিতা, গল্প, সাহিত্য যাই কিছু করি না কেন, এই যে অর্থশাস্ত্রের এই মূল বিষয়টা যদি আমরা না বুঝতে পারি, তাহলে কোনোদিন মানুষের চাহিদা পূরণ হবে না। এটা প্র্যাকটিক্যাল। আমি যতই আপনাকে বলি সত্য, প্রেম, সুন্দরবতী হবে না, সেটা প্র্যাকটিক্যাল মূল হচ্ছে অর্থশাস্ত্র, মূল যেখানে আমরা আমাদের জীবনযাপনের জন্য। তাহলে কি হচ্ছে এখানে, যে তাহলে সর্বাধিক অভাব থেকে যাচ্ছে এখানে, কারণ মুদ্রা নেই, প্রোডাকশন নেই, জীবিকা নেই, রোজগার নেই, ডিমান্ড নেই, এখনকার যে অবস্থা রয়েছে। এবার আমরা যেটা মানে প্রপোজ করেছি, যেটা শিরোহিজি দিয়েছেন নতুন ইকোনমিক মডেল, সেই মডেল বলছে যে
মুদ্রা যে অর্ডার করার জন্য যে মুদ্রার প্রয়োজন, সেই মুদ্রার যে মানে থাকার যে বাধ্যতামূলক বিষয়টা, সেটাকে সরিয়ে দিয়েছে উনি, যে মানুষের ডিমান্ড করার জন্য মুদ্রার প্রয়োজন থাকবে না। কারণ আমরা বেঁচে রয়েছে ডিমান্ড, আমাদের বস্তু পরিষেবার জন্য বেঁচে আছি আমরা তো ওটাই দরকার, সেটাই আমাকে সুখ দেবে। বস্তু পরিষেবা জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন আমাদের, তা আমাদের সুখ দেবে, সেই জীবনের উদ্দেশ্য প্রত্যেকের, তাই যে সমস্ত কিছু কাজ করছি আমরা। তো এখানে কি হয়েছে যে মুদ্রাকে সরিয়ে দিয়েছে, আপাতত আমরা মুদ্রাকে সরিয়ে রাখি আপাতত, পরে আমরা এটা বুঝবো যে কি করে এটা কেন সরানো হয়েছে, সরিয়ে রাখি। যে শিরোজি বলছে যে সকলকে ডিমান্ড করার জন্য, অর্ডার করার জন্য স্বাধীনতা দিয়ে দিক সরকার, সকলেই ডিমান্ড করুক। पहले जो है ना उसी को समझाओ कि ये जो कन्फ्लिक्ट है बीच में कि डिमांड के समय यहाँ पर पैसा चाहिए। हाँ, ये समझा दिया, ये समझा दिया। ওটাই বলছেন। हाँ, है और पैसा आएगा जॉब करके। हाँ, ये बोल दिया, ये पार्ट हो गया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हाँ। ये कोई भी इकोनॉमी को मिनिमाइज करके रखता है। हाँ। मतलब ये इसको दबाता है और ये इसको हाँ, दबाता हाँ, है, क्योंकि पैसा नहीं है तो मांग नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, राइट। रोजगार नहीं बढ़ेगा तो आय नहीं आएगी। तो ये इसको दबाता है और ये इसको सप्रेस। हाँ, ये पार्ट को मैंने बोल दिया। हाँ, हाँ। तो अब इसका मतलब है कि इसी का सोल्व करना है ना, हाँ, कि भाई मांग करने समय कोई अवधान ना हो, कोई व्यवधान ना क्योंकि हमारा उद्देश्य है सभी के पास में, सभी का इच्छा है यस चला जाए, वस्तु परिसेवा पहुंच जाए, ये तो उद्देश्य है ना। Yes. तो उसको कैसे ফুলফিল হবে, उसके लिए चाहिए ইকোনমিক্স, है না। তো তাহলে আমাদের সবার বস্তু পরিষেবা দরকার, যেটা অভাব রয়েছে, সকলেরই প্রয়োজন, সকলেরই একই উদ্দেশ্য, একই ডিমান্ড। তো এবার মুদ্রাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুদ্রা সরানোর ফলে কি হচ্ছে, তাহলে সকলেই তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ডিমান্ডটা করতে পারছে, যে আমার এই প্রয়োজন প্রত্যেকের। এই ডিমান্ডটা করার ফলে কি হচ্ছে, যে 100% লোক ডিমান্ড করছে। এবার এই ডিমান্ড 100% লোক সমাজের কাছ থেকে গেল, এবার এটা প্রোডাকশন কে করবে, সমাজের লোকই প্রোডাকশন করবে, আমরাই প্রোডাকশন করবো, আমরা ডিমান্ড করছি, আমরাই প্রোডাকশন করবো। ফলে তাহলে 100% লোককে জব দিতে হবে, জব পেয়ে যাবে এখানে। কারণ সবারই যদি প্রয়োজন পূরণ হয়, তাহলে সবাইকে তো কাজ করতে হবে, কোনো না কোনো ফিল্ডে কাজ করতে হবে। আর প্রত্যেকে আমরা কাজ করতে চাইও, আমাদের বুকে বসে থাকতে চাই না। প্রত্যেকের পছন্দের কোনো না কোনো জীবিকা কাজ রয়েছে, আমাদের প্রত্যেকেরই আছে, কোনো না কোনো কাজ ভালো লাগে। আমরা এখন সময় বাধ্য হয়ে হয়তো আমরা অন্য কোনো যেতে টাকা বেশি সেদিকে আমরা ধাবিত হই, কিন্তু প্রত্যেকের পছন্দের কাজ রয়েছে, সেখান থেকে টাকা আসে না, বা সেখান থেকে আমরা সমাজ আমরা দাঁড়াতে পারি না বলে আমরা সেদিকে যাই না, কিন্তু সে তো আছেই। তাহলে কি হচ্ছে, প্রত্যেকেই তার চাহিদা করতে পারছে যে আমার এই দরকার, বা আমি এই জীবিকা যেতে চাই। তাহলে প্রত্যেকে এখানে জীবিকা পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে 100% অর্ডার গেল, 100% প্রোডাকশনের জন্য 100% লোকের দরকার আছে, তাহলে 100% লোক জব পেয়ে গেল। তো এই যে এবার জব পেয়ে যে প্রোডাকশনটা নির্মাণ হলো, বস্তু পরিষেবা, এটা 100% লোকের কাছে পৌঁছে গেল। এই 100% ডিমান্ড, 100% প্রোডাকশন, 100% জব, 100% সাপ্লাই, 100% স্যাটিসফ্যাকশন। ছেড়ে বাঁচিয়ে মধ্যে এই যে ডিমান্ড যদি উন্মুক্ত না করে দেওয়া যায়, তাহলে কোনো দিন এই শান্তি শৃঙ্খলা কিচ্ছু আসবে না। এর জন্য বিকল্প একটা মানে সংশোধিত অর্থনীতি প্রয়োজন। এটা হচ্ছে মূল ফান্ডা অর্থনীতি। কি সেটা মার্কসের থিওরির বাইরে কিছু না, মার্কসের থিওরির সঙ্গে কিছু মিল আছে, আবার কিছু যেহেতু ব্যবস্থা বিষয়ক বিষয়। গরমিল কোনটা? অমিলটা বলো, মার্কসের থিওরির সঙ্গে অমিল। तो उन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम ये क्या मार्क्स के साथ मेल खाता है, ये আপনি বলুন, এটা কি মার্কসের সঙ্গে ম্যাচ করছে? এই বিষয়টা, এই অর্থনীতিটা মার্কস দিয়েছেন কি? কিছু না, সেই নিয়ে অনেক কথা আছে, আমি ঠিক বোঝাতেও পারবো না। ঠিক মিল আছে কিছুটা, কিছু অমিল আছে। মূল ব্যাপারটা বলো যে এই মার্কস সবার ইচ্ছেটা পূরণ করার ব্যাপারটা মার্কস বলেননি। মার্কস বলেছেন সবাইকে সমান দেওয়া হবে, সবার সমান ইচ্ছে তো না, সমান চাহিদা না, ভ্যারাইটি আছে, ভ্যারাইটি আছে, চাহিদার ভ্যারাইটি আছে। এখানে ওই যে 4 রকম মানুষ, এই ব্যাপারটা বলতে হবে, যেটা সিরিজ ব্যাখ্যা করেছে, এই 4 রকম মানুষ আছে। एंड अनदर थिंग वो वैरायटी का तो हो, और साथ में एक बात ये भी है कि कार्ल मार्क्स ने जो उसका जो सिस्टम था फिलोसॉफी का, उसमें वो बताता था कि 10% लोग जो है उसको कभी ना कभी उसने खराब बताया। তখন ওই ব্যাপারটা আসেনি যে 4 রকম মানুষ আছে, প্রত্যেক রকম মানুষের কি চাহিদা হতে পারে, ওই ব্যাপারগুলো আসেনি। এখন জানা ছিল না মানুষের, এখন জানা হয়েছে। সেই সাইকোলজি আমি যদি একেবারে এখান থেকে ধরেই যদি বলে দিই, তাহলে বিষয়টা যেটা দাঁড়ায়, আমি বলে দিই যে অনেকে মার্কসের সঙ্গে যেটা এখানে তুলনা করেন, এই বিষয় যেহেতু ব্যবস্থা বিষয়ক বিষয়, তো কিছু না কিছু ম্যাচ করবেই, অনেক কথা ম্যাচ করে যাবে।
এটা স্বাভাবিক কথা। কিছু কিছু থাকে अल्टीमेट আস্তে आस्ते उत्तरण होচ্ছে है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है कि अल्टीमेट कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैच करेगा ही, जैसे व्यवस्था रिलेटेड है ना, ऐसा होगा ही। किंतु नहीं, और वो मार्क्स वाली व्यवस्था की बात करें और उसका पूंजीवाद से भी करें तो कई चीजें मैच कर जाएंगे आप, क्योंकि व्यवस्था हाँ ही हाँ है। বলছে পুঁজিবাদ সঙ্গে অনেক কিছু ম্যাচ করবে পুঁজিবাদের যেটা সঙ্গে যত না মার্ক্সের ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটাই মিল। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था भी ये कहती है कि भाई ये मनुष्यों के लिए है, सबके लिए है। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा तो नहीं बोलती ना कि केवल 10% के लिए, हाँ ऐसा हाँ नहीं बोलती। हाँ, हाँ। वो भी तो ये कहती है ना कि सबके लिए, इसमें सबको समान अधिकार है पाने का, सबको मिलेगा ऐसा नहीं बोलती। क्या बोलती है? सबको समान अधिकार है जो पाने का, क्या आप पढ़िए लिखिए मेहनत करिए पाइए, है ना, आपको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो अब इसको आप समाजवाद में उसमें चले जाएंगे तो वहां पर भी ये ऐसा मिलेगा कि भाई सब कुछ सबके लिए होना चाहिए, ऐसे ही तो होता है। तो ये ऐसे सुनने में तो लगता है एक जैसी बात है, हाँ मगर इसको अगर हम थोड़ा डीपली इसको ध्यान दें इस पर, तो उसके स्ट्रक्चर में फर्क है। क्योंकि जब पूंजीवाद ऐसा कह रहा है तो पूंजीवाद कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, आप ले लीजिए मुझसे, समझ रहे हैं? आप मेहनत कर लीजिए, आप कर लेंगे आपको मिल जाएगा, आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये क्या बोलता है पूंजीवाद? समाजवाद क्या बोलता है कि भाई ऐसे नहीं, आप करेंगे तो आपको भी मिल जाना चाहिए और जो नहीं करेगा तो उसको भी तो कुछ तो मिल जाना चाहिए, सब कुछ नहीं, टिकेगा। हाँ कुछ तो मिल जाना चाहिए, तभी समाज टिकेगा। है ना, ऐसे करके नहीं। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि भाई, वहां पर भी कंडीशंस हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं भाई, पहले आदमी को आप समझ लो कि आदमी है क्या चीज, क्योंकि व्यवस्था तो उसके लिए करनी है ना, तो उसकी तो कोई बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पहले आदमी को समझ लो कि ये क्या है, कितने तरह का होता है, वो क्या क्या मांग करता है, क्यों करता है, किस लिए, फिर उसके हिसाब से आप सिस्टम की बात करिए, तो वो जैसा है। हाँ इसमें इसमें मैं बोल देता हूँ ये चीज। तो আরো হচ্ছে या तो मार्क्स ऐसा कुछ नहीं बोलते कहीं पर भी। মার্কস কি করছে, এজ এ হোল সোসাইটি দেখে সে বলে দিয়েছে যে সকলের সবকিছু পূরণ হওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন। না হচ্ছে সকলে সমান পাবে, হ্যাঁ সমান হচ্ছে সকলে সমান পাবে, হ্যাঁ। সকলে কাজ করবে, সকলে সমান পাবে। হ্যাঁ এজ এ হোল সে সাম্যবাদী সমাজের সিস্টেমে বলেছে, তাও আবার অন্তিম ব্যবস্থায় যে সকলে সমান পাবে। আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে তখন মুদ্রা থাকবে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরে যখন সাম্যবাদী ব্যবস্থা তখন মুদ্রার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু তখন সমান চাহিদা হবে, সকলের সমান দেওয়া হবে সকলকে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে না, সকলকে সমান দেওয়া হবে না, সকলকে তার চাহিদা মতো দেওয়া হবে। কারোর চাহিদা বেশি থাকতে পারে, কারোর চাহিদা কম থাকতে পারে। মূলত এই জায়গাটা আমার মনে হয়েছে, এই জায়গাটা। এবার আরো তুমি ভালো বলতে পারবে বা আরো ভালো বলতে পারবে। শুধু ওখানে তফাৎ তা নয়, এখানে মূল হচ্ছে যে উনি তো এজ এ হোল বলে দিয়েছে যে সবাই সবকিছু পেয়ে যাবে, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे होल बोल दिया, वो तो सारी व्यवस्थाएं हाँ, बोलती सारी है। बोल दी। लेकिन वो होगा कैसे, ये जो स्ट्रक्चर है हाँ। वो लोगों के पास आएगा कैसे? এই যে রাষ্ট্র কি থাকবে, তাহলে রাষ্ট্র থাকবে তাহলে অধিকার পাওয়ার কার কাছে থাকবে, ক্ষমতা কার কাছে থাকবে? সেখানে কি ক্ষমতা সমাজের কাছে থাকবে নাকি রাষ্ট্রের কাছে থাকবে? তাহলে কি করে এখানে সমাজটা কে? সমাজ জনগণ, পাবলিক, হ্যাঁ কোন জনগণের কাছে সে পাওয়ারটা থাকবে? সকলেই সকলে তো প্রশাসন চালায় না। হ্যাঁ, না আমি Will build the gap. আমি এই যে হোল বলছি, যেমন 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 যে মার্ক্স যেহেতু এই জিনিসটা পুরো স্পষ্ট ছিল না রাষ্ট্রের বিষয়টা নিয়ে, ফলে এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। মার্ক্সের পরেই তারা অনেকেই বলছে যে না, যে রাষ্ট্র যদি আমরা করি তাহলে ডিক্টেটরশিপ চলে আসবে, একনায়কতন্ত্র চলে আসবে, ফলে অনেকেই সেখান থেকে সরে গেছে। অনেকে বলছে না, পুরো সমাজের উপর, যেমন সোশ্যালিস্ট পার্টি আছে তারা সমাজের কথাই বলছে। তো আবার অনেকেই চলে গেছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে, সেখানে আমরা দেখছি যে অনেক রাষ্ট্র ভেঙেও গেছে, পুঁজিবাদ, এবং সেখানে এটা ডিক্টেটর চলে এসেছে। তো এই যে কনফ্লিক্টটা হয়েছে সেইখানেই এক তো তার সঙ্গে যেটা বড় ডিফারেন্স সিরিজের সঙ্গে জীবন দর্শন নিয়ে, ওনার দুটো বই যেটা আমরা প্রকাশিত করলাম, একটা তো দর্শন নিয়ে, এটা খুব ভাইটাল বিষয়। এটা যদি আমরা পরিষ্কার না বুঝি তাহলে ব্যবস্থাটা কখন হবে না। এখানে মূল তফাৎ রয়েছে দর্শন বিষয়। यस और एक बड़ा अंतर है उसमें। मार्क्स जब बोलते हैं तो वो ऐसा नहीं कहते कि हम लोगों से डिमांड लेंगे पहले, ऐसा नहीं बोलते। हाँ ये तो डिफरेंस
Yes. हाँ। अब आप जब लोगों से डिमांड ही नहीं लेंगे तो बाकी सारा स्ट्रक्चर तो इसके बाद ही शुरू होता है। नहीं सप्लाई किस बेस पे करोगे? उन्होंने बेस ही नहीं है तो ना। वो अनुमान के आधार पे नाश्ते बोला कि जो जो पूंजीवाद में होता है, पूंजीवाद में अनुमान लगाते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, तो उस हिसाब से मांग आएगी। तो वो अपना कोई और अनुमान लगा रहे, और ऐसा अनुमान रशिया में, और वहां वो लगा नहीं पाए, तो उन्हें वहां पे पॉइंट रखने पड़े कि भाई इनको 300 पॉइंट देंगे, इनको 400 पॉइंट देंगे, इस पॉइंट से ये सामान खरीदेंगे। तो वो तो था तो पूंजीवादी, वो भी कंट्रोल्ड पूंजीवाद था। सभी को समान सुविधा दे नहीं पाए, दे नहीं पाए, किसी के लिए छोटा कमरा, किसी के लिए बड़ा कमरा, किसी के लिए बड़ा कमरा, एक ही कमरे में कई कई लोग जो है हाँ हाँ। उसमें घुसे थे। किसको क्या काम देना है वो सिस्टम बता रहा है, पूछ नहीं रहे कि आपको क्या करना है। না একটা কথা বলবো? हाँ রাশিয়ার চিঠি যে বইটা রবীন্দ্রনাথের চোখে যেটা দেখেছি রাশিয়ার চিঠি বইটাতে, উনি বলছেন যে ওখানে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তার যে ডাক্তারি করছে সেও দেখা যাচ্ছে সাধারণ ভাবে রয়েছে, সে তার সবকিছু চাহিদা অনুযায়ী জিনিস পাচ্ছে না, কারণ তখন দুঃখী একটা ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ ये ना इसमें से निकाल ही दो, नहीं तो इतनी दूर की आवाज लेगा नहीं ये। इसको निकाल दोगे तो सबकी आवाज आ जाएगी उसमें। সবাই वो মিলেমিশে একটা निकाल दो। মানে এক हाँ জায়গায় निकाल दो निकाल दो। থাকার চেষ্টা করেছে, क्योंकि या तो कई सारा हो तभी चलेगा। সবাই মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। एक बार स्टॉप करके फिर से स्टार्ट। ডাক্তার সে ভাবছে আমি একটা বেটার কাজ করছি, এটা অন্য অনেক ক্ষেত্রে না, ঠিক আছে অন্যরকম কাজ করছি, আমি কেন চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছি না।